has recently released a brand new feature that is data analysis tool. ये बिल्कुल फ्री है और सबके लिए अवेलेबल है. Using this data analysis tool, we can create graph, visuals, analytics dashboard और डेटा को पूरा डिटेल में एनालाइज कर सकते हैं. तो लेट्स सी कुछ यूज केसेस को यूज करके देखेंगे कि कैसे डेटा एनालिसिस टूल को हम लोग यूज कर सकते हैं. बिफोर देन दैट लेट्स सी कब ये रिलीज हुआ था. सो एनालिसिस टूल इन क्लाउड AI, it was released on October 24, 2024. We are introducing the analysis tool, a new built-in feature for Claude AI that enables Claude to write and run JavaScript code. Claude can now process data, conduct analysis, and produce real-time insights. The analysis tool is available for all Claude AI users in features preview. Think of the analysis tool as a built-in code sandbox where Claude can do complex math, analyze data, and iterate on different ideas before sharing an answer. इसको हम लोग CSV फाइल के फॉर्मेट में दे सकते हैं. When you need precise verifiable answers from data, Claude now works more like a real data analysis. Instead of relying on abstract analysis alone, it can systematically process your data, cleaning, exploring, and analyzing it step by step until it reaches the correct result. So we can see there will be something like this interface वहां पर होगा. And who can use this analysis tool? So marketers can upload customer interaction across the full funnel and Claude will surface opportunities to improve conversions. Sales team भी डेटा को अपलोड कर सकती है और वहां से country specific performance analysis कर सकती है. Product managers can upload customers engagement data and Claude will help inform sprint planning and development priorities. Engineers can upload performance logs. Finance teams can upload monthly financial data and Claude will create financial dashboard to convey key trends and inform decision making. अभी जस्ट कुछ दिन पहले Claude has introduced Claude 3.5 Sonnet New, जो कि सबसे ज्यादा रीजनिंग के लिए, एनालाइजिंग के लिए ये मॉडल Claude ने बनाया है. तो उसको मिक्स करके, उसको कंबाइन करके ये डेटा एनालिसिस टूल लेकर के आया है Claude, जिसके थ्रू कि हम लोग डेटा एनालिसिस कर सकते हैं और ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा हम लोग को डेटा एनालिसिस में. तो लेट्स सी इसको कैसे यूज करते हैं. सबसे पहले आपको अपने यहाँ पर लॉगिन में जाना है और अपने यूजर आईडी पे क्लिक करना है. देन यू कैन गो ऑन फीचर प्रीव्यू और यहाँ पे मेक श्योर कि इसको आप ऑन कर दें. ऑन करेंगे तभी एनालिसिस टूल मोड में आएगा. तो यहाँ पे ऑन करना है. देन यहाँ पे आ जाते हैं. हियर यू कैन सी लाइक दिस. जब यहाँ पर दिखा रहा है दैट मीन्स कि ये आपका एनालिसिस टूल ऑन है. Then you need to upload data make sure कि ये CSV फॉर्मेट में होना चाहिए. तो हम लोग एक डेटा इस पे अभी CSV फॉर्मेट में अपलोड करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे. देखते हैं कि हाउ वी कैन गेट द आउटपुट. तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाते हैं और डेटा को एनालाइज करने के लिए मैंने यहाँ पर एक एनुअल वर्किंग आवर्स के डेटा को मैंने लिया हुआ है. यू कैन सी ईयर. यहाँ पर ईयर्स है, देन कंट्री है, देन कंट्री एब्रीविएशन, देन एवरेज एनुअल वर्किंग आवर्स पर वर्कर. तो एवरेज एनुअल वर्किंग जो आवर्स होता है वो यहाँ पे कंट्री वाइज ये पूरा डेटा है. इसको हम लोग एनालिसिस करके देखते हैं. तो इसी डेटा को मैं यहाँ पे अपलोड कर दिया. यहाँ पे बस जाना है और अपलोड कर लेना है. After that, you need to give the
प्रॉम्प्ट, तो मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट राइट कर लिया है सो दैट कि फास्ट हो जाएगा. सो create a line chart that compares the average annual working hours per worker across various countries from 1994 to 2024 using the provided data to highlight trends and changes in working hours over time. So let's see how it is going to analyze और क्या हमारे पास डेटा आता है, किस टाइप से ये विजुअलाइज करता है उस डेटा को. So you can see यहाँ पर ए एनालाइज कर रहा है अभी डेटा को, और इधर आप कोड भी देख सकते हो जो एक कोड राइट करता है एनालाइज करने के लिए उस पूरे डेटा को. दैट्स द गुड थिंग, क्लॉड आल्सो शेयरिंग कि ये बैकग्राउंड में क्या कोड रन कर रहा है. एंड यस, वाओ, व्हाट अ ग्रेट जीयूआई. आप यहाँ पर देख सकते हो कि yes, we can see यहाँ पे average annual working hours by country. So United States we can see 1883, United Kingdom 1743, 1743, जर्मनी. तो इस तरीके से हमें डेटा पता चल सकता है कि मीन्स 1994 की यदि हम लोग बात करें तो टॉप में था यूनाइटेड स्टेट्स, सबसे ज्यादा मतलब यहाँ पे वर्किंग आवर्स था 1883 एंड सबसे नीचे था नीदरलैंड. ऐसे ही डेटा को और आगे यदि 2024 की बात करें तो यहाँ पर देखें अभी भी यूनाइटेड स्टेट्स है, बट यहाँ पर डेटा क्लियरली शो कर रहा है इट्स 1767. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर हेडिंग भी दे दिया, नीचे यहाँ पर ईयर्स दे रहा है, इधर आपका एनुअल वर्किंग आवर्स को शो कर रहा है. तो दैट्स रियली अ गुड विजुअलाइजेशन. इस पे मैंने एक और फॉलो अप क्वेश्चन दिया है, क्या करते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं. वी कैन ऑल्सो शेयर द इमेजेस, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम लोग. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, टूल देन स्क्रीनशॉट इसको लेते हैं एंड यस, इसका स्क्रीनशॉट लेकर करके और फिर इसको अटैच कर देते हैं यहाँ पर. ओके, मैंने जस्ट सिंपली कंट्रोल वी कर दिया तो ये पेस्ट कर दिया, और उसके बाद ये प्रॉम्प्ट में देता हूँ transform this graph and page into dark mode for a visually appealing presentation. मीन्स ये अच्छा तो लग रहा है बट इससे भी अच्छा लगता है यदि ये डार्क मोड में देता है. प्लेस द legend in a box format in the upper right corner, abbreviating country names to ensure they fit neatly. Additionally, enhance the layout with more key findings displayed below the graph to emphasize insight clearly. तो यहाँ पे और भी इंसाइट्स यहाँ पे दिखा दे और इसको थोड़ा सा और अच्छे से दे. तो दैट इज व्हाट आई हैव गिवन द प्रॉम्प्ट. देखते हैं कि इसको और कितना अच्छे से विजुअलाइज करके हमें दे देता है. सो यू कैन सी अगेन इट इज रनिंग एनालाइजिंग द डेटा, और इसके बाद हमें रिजल्ट ये दे देगा ग्राफ के फॉर्मेट में. देखते हैं कि उससे बेटर कितना अच्छा देता है और डार्क मोड में देता है या नहीं देता है. तो लेट्स सी कि इसका क्या जो अभी प्रॉम्प्ट दिया है तो इससे कितना बेटर रिजल्ट दे सकता है. तो इसमें ये बहुत अच्छा है कि आप जितना यू कैन सी, वाह रियली गुड, कितना अच्छा है. इसने पूरा यहाँ पर आप देख सकते हो जो मैंने राइट किया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एब्रिविएशन कर करके दे दिया सारे कंट्रीज का. हियर यू कैन सी और इट इज इन डार्क मोड. और अब आप देखो एक कितना अच्छा विजुअलाइज करने में इजी है एंड इट्स रियली अपीलिंग. ओके, नाउ लेट्स सी अ न्यू एग्जांपल. तो एक मेरे पास और डिफरेंट डेटा सेट है. इसमें स्लीपिंग डिसऑर्डर को हम लोग देखेंगे. लाइक यहाँ पे पर्सन आईडी है, जेंडर है, एज, ऑक्यूपेशन, स्लीप ड्यूरेशन, क्वालिटी ऑफ स्लीप, फिजिकल एक्टिविटी लेवल, स्ट्रेस लेवल, बीएमआई कैटेगरी, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, डेली स्लीप एंड स्लीप डिसऑर्डर. तो हम लोग जो डेटा देखेंगे वो देखेंगे स्लीप ड्यूरेशन एंड क्वालिटी ऑफ स्लीप एंड स्लीप डिसऑर्डर के रिस्पेक्ट में इस डेटा को एनालिसिस करते हैं. लेट्स सी कि क्या शो करता है. तो सबसे पहले तो इस डेटा को यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं
अपलोड एंड देन स्लीप हेल्थ डेटा, और मैं प्रॉम्प्ट देता हूँ कि लेट्स कॉपी एंड पेस्ट हियर प्रॉम्प्ट, create a scatter plot illustrating the relationship between sleep duration and quality of sleep. इन दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे. Use 1 hour intervals on the x-axis starting at 0 from for no sleep, and color code the points based on sleep disorders status to emphasize any patterns between sleep duration and quality. Let's see कि ये कैसे एनालाइज करके what data we are getting. So yes, it is analyzing. You can see write कर रहा है कोड एनालाइज करने के लिए, और देखते हैं कि कैसा इसको विजुअलाइज करके देता है. यू कैन सी हियर कि यहाँ पर उसका मतलब फाइंडिंग्स भी राइट करता है कि इसे क्या मिला. लाइक एक्स एक्सिस sleep duration ranges from 5.5 to 8 hours in 0.5 hours intervals. Okay. Y-axis range from 4 to 9. Color coding the three sleep disorders category like none, insomnia and sleep apnea. So yes, you can see ये हमें यहाँ पर ये डेटा दे दिया. So we can see that यहाँ पर sleep duration 7.1 hours है, quality of sleep 8 है. That means कि no sleep disorder. You can see here no sleep disorder. और ये कलर है, that means insomnia, and then रेड कलर मीन्स स्लीप एपनिया. तो यहाँ पर यदि रहते हैं इट्स 6.5 आवर स्लीप ड्यूरेशन, क्वालिटी ऑफ स्लीप 7, देन इट्स इन इंसोम्निया. और यह यहाँ पर देखते हैं तो स्लीप ड्यूरेशन 6 आवर्स है, क्वालिटी ऑफ स्लीप 5 आवर्स है, एंड इट इज कमिंग इन स्लीप एपनिया. तो इसको देखते हैं. इसको और थोड़ा बेटर विजुअलाइज करने के लिए मैंने एक और प्रॉम्प्ट दिया है. उस प्रॉम्प्ट को यहाँ पर राइट करते हैं. लेट्स सी. Switch this graph and page to dark mode for a more visually appealing, more visually pleasing appearance. Place the legend in a boxed format in the upper right corner, abbreviating sleep disorder for a compact fit. Additionally, include key findings below the graph to highlight important highlights. So इसको थोड़ा डार्क मोड में ओपन करके देखते हैं, मतलब इस विजुअलाइजेशन को. और इससे ये भी प्रॉम्प्ट में दिया है कि जो की फाइंडिंग्स है वो उसके नीचे दे दे. तो लेट्स यस, यू कैन सी नाउ इट्स रियली गुड. तो यहाँ पर आप देख सकते हो दिस कलर मीन्स हेल्दी, देन इस्मोनिया एंड देन एपनिया. सो यू कैन सी यहाँ पर देखते हैं तो यस ड्यूरेशन 6.4 आवर्स एंड क्वालिटी 6/10. तो ये किस में आता है, स्नो इंसोम्निया. और यदि यहाँ पर देखते हैं तो यही ये एपनिया में आ रहा है. और ये देख सकते हैं, यू कैन ऑल्सो सी द की फाइंडिंग स्लीप ड्यूरेशन पैटर्न्स लाइक हेल्दी स्लीपर्स एवरेज 7.1 hours of sleep, and insomnia patients average 6.4 hours, and sleep apnea patients average 6.3 hours. Sleep quality analysis. तो इस तरीके से यहाँ पे की फाइंडिंग्स भी आपको देखने को मिल जाएगा. एक मैं और डिटेल एनालिटिक्स डैशबोर्ड इससे क्रिएट करा रहा हूं इसी डेटा को यूज करके जो ऊपर दिया था. एंड लेट्स सी कि ये हमें क्या देता है. तो मैंने क्या दिया है, अच्छा, योर मैसेज विल एक्सीड द लेंथ लिमिट फॉर दिस चैट, ट्राई शॉर्ट लिस्टिंग योर मैसेज. ओके, इसको हम लोगों को न्यू देना पड़ेगा. तो एक न्यू ओपन कर लेते हैं, मतलब न्यू चैट हमें ओपन करना पड़ेगा. ये दे रहा है तो उस डेटा को पहले तो एक बार अपलोड कर लेते हैं और फिर उस पर देते हैं कमांड. लेट्स सी, होपफुली ये रन कर जाना चाहिए. अभी कुछ लिमिटेशंस हैं कि डेटा यदि बहुत बड़ा है या एक ही चैट में आप नेक्स्ट पे जंप कर रहे हैं तो नहीं करने दे रहा है. तो अभी इसके कुछ लिमिटेशंस हैं इनिशियली. तो मैंने उसी डेटा को यहाँ पर
अपलोड कर दिया और मैंने प्रॉम्प्ट यहाँ पर दिया हुआ है। लेट्स सी, मैं प्रॉम्प्ट को आपको रीड कर देता हूँ कि क्या है। सो डेवलप एन एनालिटिक्स डैशबोर्ड विथ नेविगेशनल टैब featuring the following components. First one is a column chart visualizing the relationship between BMI category, daily steps, and sleep disorders. Second is a horizontal bar graph analyzing sleep quality across various occupations. Design the dashboard in dark mode for enhanced aesthetics and include key findings and summarize on each page to explain the insights and significance of the data presented. So you can see a wow, great. तो यू कैन सी हियर ये टॉप में आपको यहाँ पर एक टैब भी दो दे दिया, बीएमआई एंड स्लीप डिसऑर्डर, और यहाँ पर ऑक्यूपेशन एनालिसिस एंड यस, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं डिसऑर्डर, ओके, नो डिसऑर्डर 50, इंसोम्निया 0, स्लीप 0 एंड एवरेज डेली स्लीप 8800। यही फिर यहाँ पर देखते हैं तो नो डिसऑर्डर 4, इंसोम्निया 23। तो यस, इट्स गुड। एंड यहाँ पे की फाइंडिंग्स भी दे रहा है। नॉर्मल बीएमआई कैटेगरी सोज हाईएस्ट एवरेज डेली स्टेप्स 8800। सो यस, यू कैन सी इतना अच्छा ये विजुअलाइजेशन मींस एनालिटिक्स डैशबोर्ड क्रिएट करके दे दिया। सो यस, दिस इज हाउ वी कैन यूज क्लॉड data analysis tool to analyze data.